Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. So in my previous lectures I told you about the transformer, its working, about auto transformer and three-phase transformer. And today we are going to start our new topic, that is polyphase system. Polyphase system. So what is the meaning of polyphase? Poly means many, like more than one. Phase means winding or circuit. So when we have more than one winding or more than one phase, so it is known as polyphase system. बेसिकली पॉलीफेज टू फेज वाइंडिंग भी हो सकती है, थ्री फेज भी हो सकती है, सिक्स भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है. बट जो हम कंसिडर करते हैं पॉलीफेज वाइंडिंग वो सिस्टम होता है जो कि मेरा थ्री फेज सिस्टम होता है. सो थ्री फेज सिस्टम को ही मैं पॉलीफेज सिस्टम कंसिडर करती हूँ. और अगर आपसे कभी भी अबाउट पॉलीफेज सिस्टम के बारे में पूछा जाए, सो टेल देम अबाउट द थ्री फेज सिस्टम. सो थ्री फेज सिस्टम इज सेम एज द polyphase system or polyphase system is same as the three phase system. So polyphase system is a combination of two or more than two voltages having same magnitude and frequency but displayed from each other by an equal electrical angle. As poly means many, more than one, and phase means many windings or circuits, each of them has a single alternating voltage of the same magnitude and frequency. The angular displacement between the adjacent voltages is called a phase difference and depends upon the number of phases. Phase difference क्या है यहाँ पे 360 electrical degree number divided by number of phases. However, the above equation does not hold good for the two-phase system, where the voltages are displayed by an angle of 90-degree electrical. Thus, in other words, a polyphase system can be defined as an AC system having group of two or more than two equal voltages of same frequency arranged to have an equal phase difference between the adjacent EMFs. ये आपको समझ में आया कि पॉलीफेज सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज एन एसी सिस्टम, एक एसी सिस्टम जिसमें कि ग्रुप हो मोर देन टू इक्वल वोल्टेजेस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी अरेंज टू हैव एन इक्वल फेज डिफरेंस बिटवीन द एडजेसेंट EMFs. Single phase systems are employed for the operation of almost all the domestic and commercial applications. For example, fan, TV, refrigerator, washing machine, mixer, grinder, computers, exhaust fans, lamp, electric toasters, electric irons, and etc. But the single phase system has its limitation in the field of generation, transmission and distribution and in industrial application. Thus, because of such limitation, single phase systems is replaced by the पॉलीफेज सिस्टम. सो सिंगल फेज सिस्टम को हम अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में तो ईजिली यूज़ कर सकते हैं, बट सिंगल फेज की वी डोंट हैव एनी एप्लीकेशन इन द पावर सिस्टम और वी कैन से इन आर इंडस्ट्रीज. सो इस चीज़ को यहाँ पे कवर करने के लिए और सिंगल फेज को पावर स्टेशंस में और इंडस्ट्रीज़ में रिप्लेस करने के लिए वी यूज़ पॉलीफेज सिस्टम. Polyphase, or we can say three phase, is universally adopted for generation, transmission and distribution of electric power because of its practical utility. The polyphase system may be two phase system, three phase और six phase system. मैंने आपको पहले बताया कि polyphase system मेरा two phase भी हो सकता है, three भी हो सकता है, six भी हो सकता है, 12 phase भी हो सकता है, but mainly three phase system is used for all practical purposes. So whenever the term polyphase is used, इट मीन्स अ थ्री फेज सिस्टम अनलेस इट इज़ मैंशनड. अगर आपको बोला जाए कि पॉलीफेज के बारे में बताओ या पॉलीफेज के बारे में मैंशन करो, सो यू कैन टेल देम और राइट इन योर पेपर अबाउट द थ्री फेज सिस्टम. अदरवाइज वहाँ पर मैंशन होगा कि आप सिक्स फेज कनेक्शन के बारे में बताओ या फिर 12 फेज कनेक्शन के बारे में बताओ या फिर टू फेज कनेक्शन के बारे में बताओ. और अगर सिर्फ पॉलीफेज के बारे में पूछा जाता है, सो यू कैन टेल देम अबाउट थ्री फेज कनेक्शन. नेक्स्ट वी हैव टू वॉट मीटर मैथड. अब ये टू वॉट मीटर मैथड क्या है? वॉट मीटर मैथड क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग पावर इन थ्री फेज, थ्री वायर, स्टार और डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम विद ईदर विद द बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड लोड. टू वॉट मीटर मैथड थ्री फेज, थ्री वायर कनेक्शन में, चाहे वो स्टार में कनेक्टेड है या फिर वो डेल्टा में कनेक्टेड है, बैलेंस है या फिर अनबैलेंस्ड है, सो उस कंडीशन में
पावर मेजर करने के लिए हम लोग 2 वॉट मीटर मेथड को यूज़ करते हैं. सो इन दिस मेथड मैंने क्या किया हुआ है, देयर आई एम यूजिंग 2 वॉट मीटर. So here I am using 2 watt meters. Okay, and the current coil of these watt meters are connected in series. ये जो current coils हैं they are connected in series with the 2 lines. ये इनके lines के साथ में connected है. And potential coils जो voltage coils हैं they are connected across these two potential coils are connected across these 2 lines and load is connected in star connection. और ये जो मेरा complete connection है this is my connected in star connection. ये complete connection मेरा क्या है, star connection है. जो मेरी voltage lines है they are connected in series and my जो potential lines है they are connected across these 2 lines. ठीक है. सो अब इस कनेक्शन में क्या है, द इंस्टेंटेनियस करंट फ्लोइंग थ्रू द वॉट मीटर W1 इज IR. अब ये जो मेरा वॉट मीटर 1 है ये मेरा किस किस के बीच में कनेक्टेड है, ये मेरा R के बीच में कनेक्टेड है, B के बीच में कनेक्टेड है. फिर जो मेरा वॉट मीटर 2 है वो भी मेरा Y के बीच में कनेक्टेड और मेरा B के बीच में कनेक्टेड है. ठीक है. तो अब जो मेरा R के रिगार्डिंग वॉट मीटर 1 के रिगार्डिंग जो मेरा करंट फ्लो कर रहा है वो मेरा क्या है, IR. करंट मेरा सिर्फ IR फ्लो कर रहा है इस वॉट मीटर के रिगार्डिंग. लेकिन जो मेरी वोल्टेज है इसके रिगार्डिंग वो वोल्टेज मेरी क्या है, एक तो इस फेज़ के रिगार्डिंग और दूसरी मेरी ये वाली इस फेज़ के रिगार्डिंग. दोबारा से बताती हूँ कि अब मैंने अपना फर्स्ट वॉट मीटर कंसीडर किया. अब इसमें मुझे क्या है कि 2 वॉट मीटर मेथड की हेल्प से मुझे अपनी पावर मेजर करनी है इस स्टार कनेक्टेड कनेक्शन में. ठीक है. तो अब इसमें जो मेरा वॉट मीटर 1 है इसके अक्रॉस जो मेरा करंट फ्लो कर रहा है वो मेरा IR है. और जो ये मेरा वॉट मीटर W1 है ये कनेक्टेड किस किस के अक्रॉस है, R के एंड B के. R के बीच में कनेक्टेड और यहाँ जाके B से कनेक्टेड है. सो जो करंट है वो तो IR ही है. ठीक है. और जो वोल्टेज है, वोल्टेज क्या क्या है, ERN एंड EBN. ठीक है. सो एक यहाँ से जा रही है और एक यहाँ से जा रही है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो मेरी वोल्टेज यहाँ पर फ्लो करेगी. और मेरी पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू IV. पावर क्या होती है मेरी, करंट इनटू वोल्टेज. तो अगर मुझे वॉट मीटर 1 के रिगार्डिंग पावर निकालनी है तो करंट I इंटू V होता है. I इसमें मेरा क्या है, IR. और वोल्टेज मेरी क्या है, फेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द दीज 2 वोल्टेजेस. सो ERN माइनस EBN. ये चीज़ क्लियर है. वॉट मीटर 1 के रिगार्डिंग जब मुझे पावर निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू V. I क्या है, IR. वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 फेजेस बिटवीन E एंड R एंड B. तो R के रिगार्डिंग जो मेरी वोल्टेज है वो है ERN, B के रिगार्डिंग जो मेरी वोल्टेज है वो है EBN. सो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो मेरी वोल्टेज होगी, पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे मेरा. तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन की है मेरी इक्वेशन 1 में. सिमिलरली जब मैं अपने वॉट मीटर 2 के रिगार्डिंग देखती हूँ, वॉट मीटर 2 के रिगार्डिंग देख रही हूँ. सो वॉट मीटर 2 मेरा किस किस के में कनेक्टेड है, Y में और B में. सो इसके रिगार्डिंग मेरा करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, IY. और पोटेंशियल डिफरेंस मेरा किस किस के बीच में होगा, Y एंड B के बीच में. तो Y में मेरा जो वोल्टेज है वो कितनी है, EYN माइनस EBN. तो जब मैं इसके अक्रॉस पावर निकालूंगी, इन दोनों के अक्रॉस जब मैं पावर निकालूंगी, वॉट मीटर 2 के अक्रॉस में जब मैं पावर निकालूंगी, W2 के अक्रॉस जब मैं पावर निकालूंगी तो क्या हो जाएगी,
I इंटू वी, यहाँ पे मेरा I क्या है, I वाई, और वोल्टेज फेज डिफरेंस क्या है, ई वाई एन माइनस ई बी एन। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को। अब टोटल पावर क्या होगी, टोटल पावर क्या होगी, W1 प्लस W2। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे किया है। टोटल पावर निकालने के लिए मैंने यहाँ पे W1 एंड W2 को प्लस कर दिया है। तो जो मेरी यहाँ पे टोटल पावर आ जाएगी वो किसके इक्वल आएगी, P के इक्वल। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ। 2 वॉट मीटर मेथड क्या है कि मुझे इसमें अपनी पावर मेजर करनी है बाय 2 वॉट मीटर। ठीक है, पावर किस में मेजर करनी है, थ्री फेस सिस्टम में मेजर करनी है। वो 3 फेस सिस्टम मेरा स्टार में भी कनेक्ट हो सकता है, डेल्टा में भी कनेक्ट हो सकता है, बैलेंस भी हो सकता है और अनबैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, सो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 वॉट मीटर यूज़ किए, W1 एंड W2। W1 मेरा जो कनेक्टेड है वो आर एंड बी फेज के बीच में कनेक्टेड है, और जो मेरा W2 कनेक्टेड है वो मेरा वाई एंड बी फेज के बीच में कनेक्टेड है। सो पावर का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। सो जो मेरा वॉट मीटर 1 के रिगार्डिंग जो मेरा करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है, IR, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है मेरा R एंड B के बीच में वो मेरा वोल्टेज हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेरा वोल्टेज हो जाएगा, तो वोल्टेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, ERN माइनस EBN। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है, W2 वॉट मीटर के रिगार्डिंग जो मेरा करंट फ्लो कर रहा है उसकी मेरी वैल्यू क्या है, IV, और वहाँ पे मेरा वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जो मेरी वोल्टेज है B के बीच में, Y के बीच में एंड B के बीच में, उन दोनों का डिफरेंस। सो Y में मेरी वोल्टेज क्या फ्लो कर रही है, EYN, और B में क्या है, EBN। सो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो मेरी यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगी। अब मैंने अपना W1 के रिगार्डिंग भी पावर निकाल ली एंड W2 के रिगार्डिंग भी पावर निकाल ली। अब मुझे इस टोटल सिस्टम की पावर को कैलकुलेट करना है, तो टोटल सिस्टम की पावर को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, W1 एंड W2 को प्लस कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। सो P इज द टोटल 3 फेज पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड। आई होप आप लोगों को पॉलीफेज सिस्टम क्या होता है, पॉलीफेज क्या होता है, ये टॉपिक क्लियर होगा। एंड व्हाट इज अबाउट 2 वॉट मीटर मेथड, ये चीज़ भी क्लियर होगी। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स देन प्लीज डू मेंशन मी इन दी कमेंट सेक्शन। और यहाँ पे आप लोगों के इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होती हैं वो क्लियर होंगी। मैंने यहाँ पे स्टैटिक डिवाइस पढ़ी जो कि मेरी ट्रांसफार्मर होती है। ट्रांसफार्मर मेरा सिंगल फेज भी हो सकता है, 3 फेज भी हो सकता है, ऑटो ट्रांसफार्मर भी हो सकता है। ठीक है, अब 3 फेज ट्रांसफार्मर को मैं अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर सकती हूँ और 3 फेज को मैं पॉलीफेज सिस्टम भी बोल सकती हूँ। इसके अलावा हम लोगों ने डायनेमिक मशीन्स पढ़ी। डायनेमिक मशीन में मेरी रोटेटिंग